ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میرا ہاتھ چھوڑیں۔ گل نور بری طرح مچلی تھی۔ تم شاید بھول گئی ہو ہمارے درمیان کیا رشتہ ہے۔ بیوی ہو تم میری، اور اب اس بات کا احساس دلانا تمہیں ضروری ہے۔ کہتے ساتھ تابش خان زادہ نے اسے بیڈ پر دھکا دیا تھا۔ نہیں، خدارا ایسا مت کریں، میں وعدہ کرتی ہوں، میں کمرے سے باہر قدم بھی نہیں رکھوں گی، بس اس بار۔ اس سے پہلے گلنور اپنی بات مکمل کرتی، تابش خان نے جارحانہ تیور سے اپنا کوٹ اتارتے۔ موسم بہت خوشگوار تھا، ہر طرف ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے کالی گھٹاؤں نے پورے آسمان کو اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ اچانک سے اجالا اندھیرے میں بدلنے لگا تھا۔ آسمان روشنی دکھاتا ہوا اچانک سے اندھیرا کرنے لگا تھا۔ ہر طرف تیز ہوائیں چل رہی تھیں۔ تبھی ہوٹل کی کھڑکیاں ہوا کے جھونکوں سے کھلنے لگی تھیں۔ کمرے میں لگے پردے تیز ہواؤں کے جھونکوں کے ساتھ اڑنے کا لطف اٹھا رہے تھے۔ ان ہواؤں کے ساتھ ہی آسمان سے پانی کی موٹی موٹی بوندیں زمین پر آ کر گرنے لگی تھیں۔ کچھ دیر بعد یہ بوندیں بہت زیادہ تیز طوفان کی شکل اختیار کر گئیں۔ طوفانی بارش نے ہر طرف دیکھتے ہی دیکھتے خوف و ہراس پھیلا دیا تھا۔ جیسے ہی طوفان کچھ تھما، بارش کے برسنے میں کوئی کمی ہوئی تو ایک خوبصورت سی لڑکی ہوٹل کے ٹیرس پر بارش میں بھیگتی ہوئی، گنگناتی ہوئی، بارش کا لطف اٹھاتی ہوئی جھوم رہی تھی۔ لمبے گھنے بال، خوبصورت دلکش چہرہ، ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے آسمان سے چاند زمین پر بھیگتا ہوا اتر آیا ہو۔ نہ جانے اس خوبصورت منظر کو کچھ آوازیں بگاڑ رہی تھیں۔ یہ منظر ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کہ ہم اس وقت جنت میں موجود کسی حور کو دیکھ رہے ہوں۔ لیکن کچھ آوازوں نے اس سارے منظر کو بگاڑ کر رکھ دیا۔ تبھی اچانک سے کچھ اور لڑکیاں ٹیرس پر آ گئیں اور بھیگنے والی لڑکی کو اپنے ساتھ ہوٹل کے کمرے میں لے گئیں۔ موسم کو لطف اندوز کرنے والی لڑکی گل نور تھی، جو ان دنوں پہاڑوں پر اپنی سہیلیوں کے ساتھ چھٹیوں کے کچھ دن گزارنے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ گل نور بہت ہی خوبصورت دوشیزہ تھی۔ گل نور کی سہیلیاں اس سے بہت پیار کرتی تھیں، یا اس طرح کہہ لو کہ گھر سے اتنی دور آتے ہوئے گل نور کے گھر والوں نے گل نور کی سہیلیوں کو خاص تاکید کی تھی کہ اس کا خصوصی خیال رکھا جائے، کیونکہ یہ بہت بڑے خاندان کی بہت ہی قیمتی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ گل نور کھلی ہواؤں میں اس طرح سانس لے رہی تھی جیسے ایک پری کئی سال بعد کسی انسانی شکل میں آئی ہو۔ ہر چیز کو اتنی انجان نگاہوں سے دیکھنے والی گل نور آج اس قدر خوش دکھائی دے رہی تھی، جو اس سے پہلے کبھی بھی اتنی خوش نہ ہوئی ہوگی۔ گل نور اونچے اونچے درختوں کو دیکھتی اور حیرت سے اپنی سہیلیوں سے عجیب عجیب سوالات کرتی۔ یہ اونچے اونچے پہاڑ اور پہاڑوں کے درمیان سے نکلتے ہوئے پانی کے جھرنے، ٹھنڈے پانی کی ندیاں، یہ سب منظر گل نور کو بہت سکون پہنچا رہے تھے۔ گل نور پہاڑوں میں بہت خوش تھی۔ 3-4 دن پہاڑوں میں اس نے 3-4 گھنٹوں کی طرح گزارے تھے۔ گل نور بہت ہی چنچل، خوش شکل اور خوش اخلاق لڑکی تھی۔ جس جگہ بھی جاتی اس جگہ کو اپنے چنچل اور شوخی انداز سے خوشگوار بنا دیتی۔ گھر جانے کا وقت آیا، سب لڑکیاں گاڑی میں گھر آنے کے لیے بیٹھ رہی تھیں۔ تبھی لڑکیوں کے ایک استاد نے پوچھا کہ گل نور کہاں ہے؟ ایک لڑکی نے بتایا کہ گل نور نہ جانے کس پرندے کے پیچھے بھاگتے ہوئے جنگل میں بہت آگے نکل گئی تھی۔ گاڑی کے ڈرائیور اور کالج کے پرنسپل اور دوسرے استاد گل نور کو ڈھونڈنے کے لیے اس کے پیچھے جنگل کی طرف چلتے جا رہے تھے، لیکن انہیں کہیں بھی گل نور کا نشان نہیں ملا۔ سب لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ گل نور کو کوئی جنگلی جانور نہ کھا گیا ہو، نہ جانے کون سے راستے پر بھٹک گئی ہے جس پر اس کا کوئی نشان نہیں مل رہا تھا۔ شام ہونے والی تھی اور پہاڑوں کی رات وقت سے پہلے ہی ہو جاتی تھی، اور جنگلی جانوروں کا جنگل میں گھومنے کا وقت شروع ہونے والا تھا۔ سب لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے۔ سب گل نور کی وجہ سے پریشان تھے
और गुलनूर को आवाज़ें देने लगे। यहाँ तक कि गुलनूर की सहेलियाँ गुलनूर के लिए रोने लगी। जब पहाड़ों में गुलनूर को आवाज़ दी तो न जाने कौन कौन से पहाड़ से गूंज कर आवाज़ वापस आ जाती। सब हैरान थे कि पहाड़ों में इतनी दूर तक आवाज़ जा रही है, लेकिन गुलनूर को आवाज़ सुनाई क्यों नहीं दे रही। तभी एक साइड से पत्थर के सिरकने की सनसनाहट महसूस हुई। एक पल के लिए तो सबने सोचा कि शायद कोई जंगली जानवर हमारे करीब होगा। फिर जैसे ही आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाए तो देखा कि गुलनूर नदी के किनारे सहमी हुई बैठी हुई थी और उसके सामने एक सांप था, जिसकी वजह से सहमी हुई गुलनूर पलटकर वापस जवाब नहीं दे पा रही थी। जैसे ही सबकी नज़र गुलनूर पर पड़ी, एक लड़की ने पास रखी एक छड़ी से सांप को भगाया और गुलनूर को पकड़ा और उसकी एक सहेली ने उसे गले से लगाया। गुलनूर ने ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया और फिर सब लोग उसे गाड़ी में ले आए। गाड़ी में लाने के बाद गुलनूर ने बताया कि वो एक कोयल की आवाज़ सुनती हुई जंगल की तरफ निकल गई थी। गुलनूर ने बताया कि मैंने कोयल का नाम सुना था और कोयल की आवाज़ पहली बार सुनने की वजह से मैं देखना चाहती थी कि कोयल कैसी है। खैर, बातें करते हुए और मौसम से लुत्फ अंदोज होते हुए सब लोग वापस कॉलेज पहुंच गए। घर पहुंचते हुए बहुत रात हो चुकी थी। गुलनूर की सहेलियां गुलनूर को लेकर उसके घर छोड़ने के लिए चली गई। गुलनूर अपने घर के अंदर चली गई। गुलनूर ने जैसे ही अपनी हवेली में कदम रखा तो सबसे पहले उसकी अम्मी ने उसका इस्तकबाल किया और उसका ट्रिप कैसा था उसके बारे में पूछा, लेकिन गुलनूर ने किसी को भी जवाब नहीं दिया और ये कहकर बात टाल दी कि मैं बहुत थकी हुई हूँ और सोना चाहती हूँ। ये कहकर गुलनूर कमरे में सोने के लिए चली गई। गुलनूर एक बहुत बड़ी हवेली में रहा करती थी और उसके घर में बहुत से लोग रहते थे। अमूमन गुलनूर को घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। हर चीज़ गुलनूर के लिए घर में ही आया करती थी। गुलनूर के घर में नौकर भी थे जो सब काम किया करते। गुलनूर की एक नानी थी जो गुलनूर से बहुत प्यार करती। एक मामा मामी थे जिन्होंने गुलनूर को अपने हाथों का छाला बनाया हुआ था और ये उनकी बहुत ही लाडली भांजी थी। गुलनूर 2 बहन भाई थे। उसका एक बड़ा भाई अहमद भी था और ये सब अपनी नानी के घर पर रहा करते थे। गुलनूर को घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। यहाँ तक कि गुलनूर ने अपनी पढ़ाई भी घर पर रहकर मुकम्मल की थी और जिस ट्रिप से ये वापस आई थी वो ट्रिप इसकी सहेलियों के कॉलेज का था। ये वो सहेलियाँ थीं जो घर पर उसके साथ आकर खेला करती थी और गुलनूर की हवेली के इर्द गिर्द वाले घर उन्हीं के थे। उसकी सहेलियाँ उसकी बहुत ख़ास होने की वजह से उससे जलती रहती थीं, लेकिन गुलनूर उन सबको यही कहा करती थी कि सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, शायद कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ या फिर दूसरी वजह ये हो सकती है कि मैं अपनी नानी से बहुत प्यार करती हूँ। कई बार गुलनूर की सहेलियों ने उससे कहा कि जिस तरह तुम्हारे घर वाले तुम्हें प्यार करते हैं, न जाने क्यों हम सबको बहुत अजीब लगता है। ऐसा महसूस होता है जैसे कि तुम उनके लिए कुर्बानी का बकरा हो। अगली सुबह हो चुकी थी। जैसे ही गुलनूर सुबह सवेरे अपने कमरे से बाहर निकली और अपनी नानी जान के पास ड्राइंग रूम में आकर बैठ गई। खानज़ादा बेगम ने कहा कि रात को तो तुम आते ही सो गई थी और मैं तुम्हारे उठने का और तुमसे बात करने का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। मुझे बताओ कि तुम्हारा ट्रिप कैसा रहा, तुम्हें मज़ा आया या नहीं, क्या क्या देखा और क्या क्या किया। खानज़ादा बेगम ने इतनी बात कही तो बस फिर गुलनूर साहिबा शुरू हो गई। पहले रास्ते की बातें, फिर होटल की बातें, फिर होटल में होने वाली बारिश की बातें, पहाड़ों और नदियों की बातें करने लगी। फिर खानज़ादा बेगम ने पूछा, वापस आते हुए क्या देखा? तुम लोगों ने तो सुबह सवेरे आ जाना था, फिर आने में इतनी ताख़ीर कैसे हुई? गुलनूर को अपना गुम होने वाला वक्त याद आने लगा और खामोश हो गई। खानज़ादा बेगम ने फिर पूछा, मुझे बताओ कहाँ खो गई हो तुम, कोई जवाब क्यों नहीं दे रही? इतने में गुलनूर की अम्मी जान और मामी जान भी ड्राइंग रूम में आकर बैठ गई। गुलनूर की अम्मी राबिया ने रशीदा को आवाज़ दी और कहा कि हम सब के लिए चाय ड्राइंग रूम में ले आओ। गुलनूर की मामी ने कहा, बोलो गुलनूर,
बताओ तुम्हारा ट्रिप कैसा रहा? पहली बार तुम हवेली से इस तरह अकेली बाहर निकली हो। अब बताओ कि तुम्हें कैसा लगा और तुमने क्या क्या देखा। गुलनूर की मामी ने कहा कि जब से मेरी शादी हुई है मैं इस हवेली में बंद होकर रह गई हूँ। तुम्हारी नानी जान ने कभी भी मुझे इजाज़त नहीं दी कि मैं भी तुम्हारी तरह इस घर से बाहर जाऊं। जब से मेरी शादी हुई है मैं तो बस इस 4 दीवारी में घुट कर रह गई हूं। नानी जान ने कहा, बहू मुझसे तुम इस कदर तंग हो मुझे मालूम नहीं था। अब अगर मेरा तुम्हें कुछ समझाना और कहना बुरा लगता है तो अब से मैं तुम्हें किसी भी बात के लिए ना ही समझाऊंगी और ना ही तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए मना करूंगी। तुम खुद का गुलनूर से कैसे मवाजना कर सकती हो? तुम गुलनूर का रुतबा नहीं जानती हो। तभी रशीदा कमरे में चाय लेकर दाखिल हुई और कमरे में खामोशी छा गई। और रशीदा के कमरे से बाहर जाने के बाद गुलनूर की अम्मी राबिया ने अपनी अम्मी को और अपनी भाभी को चुप कराते हुए कहा, आप लोग किस बहस में पड़ गई हैं? यहाँ हम सब गुलनूर से बातें सुनने के लिए बैठे हैं और आप दोनों अपनी जंग छेड़कर बैठ गई हैं। गुलनूर की मामी ने कहा, अम्मी आप किस तरह की बात कर रही हैं और किस रुतबे की बात कर रही हैं? जो रुतबा मेरा है बिल्कुल वही जगह गुलनूर की भी है, फिर हम दोनों में इतना फ़र्क क्यों है? सास अपनी बहू की बातें सुनकर खामोश हो गई तो फिर गुलनूर अपनी अम्मी को और मामी जान को किस्से कहानियाँ सुनाने लगी और अपनी आंखों से उन्हें पहाड़ों की सैर करवाने लगी। तभी कमरे में एक तवील कद का खूबसूरत सा लड़का दाखिल होता नजर आया और कमरे में एक बार फिर खामोशी हो गई। कमरे में आने वाला लड़का कमरे में झांक कर वापस पलट रहा था कि जैसे ही उसकी नज़र गुलनूर पर पड़ी तो वो गुल की तरफ बढ़ा और उससे कहने लगा, आ गई हो तुम? जो हरकत तुमने अब की है अब दोबारा से ये काम ना हो, क्योंकि इस घर की लड़कियों को इजाज़त नहीं है कि वो बाहर घूमने फिरने के लिए अकेली जाएं। तुमने उरूज को देखा है, वो हमेशा घर पर ही रहती है और घर के कामों में दिलचस्पी लेती है। तुम भी अपना दिल घर के अंदर लगाओ। गुलनूर गुस्से से ताबिश को देखती रही और कहने लगी, आप उरूज पर ही तवज्जो दें, मेरी तरफ तवज्जो ना ही दें तो बेहतर है, क्योंकि मेरे बारे में सोचने के लिए मेरे घर वाले हैं और अगर मैं यहाँ से बाहर गई हूँ तो उन्हीं की इजाज़त से गई हूँ। आपको मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और ताबिश कमरे से चला गया। गुलनूर उठकर खड़ी हो गई और अपना पाँव ज़मीन पर पटका और कहने लगी, ताबिश भाई ने आकर सारा मज़ा किरकिरा कर दिया है। खानज़ादा बेगम ने कहा, ऐसे नहीं कहते बेटा, तुम्हारे लिए अदब व एहतराम की जगह है, तुम ताबिश की इज्जत किया करो। गुलनूर ने कहा, ऐसे काम मुझसे नहीं होते नानी, क्योंकि मैं ऐसे सड़ियल शक्ल वाले लड़के को ज़रा भी अपनी आंखों के सामने बर्दाश्त नहीं कर सकती। ताबिश भाई ने कमरे में आकर मेरा सारा मूड ख़राब कर दिया है। राबिया अपना सर पकड़कर बैठ गई, फिर अपनी बेटी को समझाने लगी कि इस तरह बात नहीं करते, ये तुम्हारे मामू का बेटा है और उसके साथ तुम इज्जत से बात किया करो। गुलनूर ने कहा, भाई ऐसे नहीं होते। राबिया ने कहा, तुम ठीक कह रही हो, भाई ऐसे बिल्कुल नहीं होते। गुलनूर ने कहा, यही तो मैं कह रही हूँ, मेरा भाई अहमद इतना अच्छा है, वो बिल्कुल भी इस ताबिश के जैसा नहीं है। जब भी देखो ताबिश भाई मुझ पर पाबंदियां लगाते रहते हैं और डांटते रहते हैं। खानज़ादा बेगम ने कहा, कोई बात नहीं, जाओ तुम अपने कमरे में आराम करो। नूर उठकर अपने कमरे में चली गई। इतने में मामी वहाँ ड्राइंग रूम में आ गई और तीनों खातून आपस में बातें करने लगी कि किस तरह इन दोनों बच्चों के दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार और सलूक पैदा करें। राबिया ने कहा, गुलनूर अभी बहुत छोटी है, बहुत नासमझ है, इसीलिए भाभी आप उसकी हर बात को नासमझी समझकर माफ़ कर दीजिएगा। खानज़ादा बेगम ने कहा, राबिया तुम ठीक कह रही हो, गुलनूर अभी 14 साल की हुई है, उसमें अभी बहुत बचपना है, उसे किसी चीज़ की समझ नहीं, इसीलिए ये बहुत चंचल और शौक होने के साथ साथ जज्बाती भी है। खानज़ादा बेगम ने गुलनूर की मामी जिया से कहा, जिया तुम अपने बेटे को थोड़ा समझाओ कि गुलनूर से उस तरह सख्ती से पेश ना आया करे, अभी वो बच्ची है और ताबिश के मिजाज को नहीं जानती और ना ही समझती है। तुम तो माँ हो, उसके मिजाज को और उसकी आदत को जानती हो,
लेकिन गुलनूर इसकी आदत और उसके मिजाज से नावाकिफ है। एक चीज़ पर मैंने भी गौर किया है, ताबिश जब भी गुलनूर को देखता है सिवाय गुस्से के उससे बात नहीं करता। जब देखो गुस्से से उसको डांटता रहता है। जिया ने कहा, आप ठीक कह रही हैं, मैं ज़रूर उसे समझाऊंगी। राबिया खामोश थी, क्योंकि उसने गुलनूर की बातों में से एक बात पकड़ ली थी कि जब भी वो गुलनूर से घर वापस आने के बारे में पूछती तो वो खामोश हो जाती थी। राबिया समझ चुकी थी कि ज़रूर कोई बात है जो गुलनूर छुपा रही है। इतने में गुलनूर की एक सहेली घर आई और ड्राइंग रूम में आने के बाद उसने राबिया से पूछा, आंटी नूर कहाँ है? राबिया ने कहा, अभी थोड़ी देर पहले अपने कमरे में गई है। वो नूर के कमरे की तरफ बढ़ने लगी। राबिया ने पीछे से आवाज़ दी, 1 मिनट यहीं रुको। नूर की सहेली खामोश खड़ी रही। राबिया ने उसके करीब जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे कहा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। उसने कहा, जी आंटी, पूछें, आप क्या पूछना चाहती हैं? राबिया ने कहा, मैं उम्मीद करती हूँ तुम मुझे सच बताओगी। उसने कहा, बिल्कुल सच बताऊंगी, आप पूछें तो सही। राबिया ने कहा, मुझे बताओ कि ट्रिप कैसा रहा और वापसी पर क्या हुआ था और तुम्हें घर आने में इतनी देर कैसे हो गई थी? नूर की सहेली ने कहा, आपको नूर ने नहीं बताया? राबिया हैरत से उसका चेहरा देखने लगी। तभी नूर की सहेली ने बताया कि गुलनूर वहां गुम गई थी और ये जंगल की तरफ भटक गई थी और हम लोगों ने बहुत मुश्किल से इसको तलाश किया था और वापस घर आने में भी इसीलिए रात हो गई थी। राबिया खामोश हो गई। फिर उसने नूर की सहेली से कहा, जाओ तुम नूर से मिल लो, मैं तुम दोनों के लिए कुछ खाने को भेजती हूँ। वो नूर के कमरे में जाने के बाद नूर से मिली और दोनों सहेलियां मिलकर बहुत खुश हुईं। तभी रशीदा कमरे में मिल्क शेक लेकर दाखिल हुई। दोनों सहेलियां आपस में बातें करने लगी। नूर की सहेली रिदा ने गुलनूर से कहा कि तुमने अपनी अम्मी को अपने गुम होने का क्यों नहीं बताया था? नूर चौंक कर अपने बिस्तर से उठ खड़ी हुई और रिदा से कहने लगी, क्या उन्होंने तुमसे कुछ पूछा है? रिदा ने कहा, हाँ, उन्होंने मुझसे पूछा है और मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया है। नूर रिदा से कहने लगी, तुम्हें यह सब करने की क्या ज़रूरत थी? उन्होंने मुझसे कई बार पूछा था, लेकिन मैंने उन्हें एक बार भी इस बात का जवाब नहीं दिया था। रिदा ने कहा, देख लो, फिर माँ ऐसी ही होती है, बगैर कहे ही वो सब कुछ समझ जाती है। नूर ने एक थपकी रिदा को लगाई और कहा कि उन्हें कुछ भी पता नहीं चला था, ये सब कुछ तुम ही उन्हें बता कर आई हो। रिदा और नूर आपस में झगड़ने लगी। रिदा गुलनूर से कहने लगी, मुझे क्या मालूम था कि तुमने उन्हें कुछ नहीं बताया। तुम जानती हो कि मैं हमेशा सच बोलती हूँ, इसीलिए मुझे आंटी को सब कुछ बताना पड़ा। अचानक से कमरे का दरवाज़ा खटका। नूर ने आवाज़ लगाई, आ जाएं। राबिया कमरे में दाखिल हुई। नूर और रिदा दोनों उठकर अच्छे तरीके से बैठ गईं। राबिया के कमरे में आने से पहले दोनों पागलों की तरह झगड़ रही थी। राबिया ने नूर से पूछा, तुम दोनों इतनी जोर से क्यों झगड़ रही थी? दोनों खामोश खड़ी रहीं। राबिया ने पूछा, रिदा तुम बताओ कि तुम दोनों क्यों झगड़ रही थी? रिदा ने कहा, आंटी, नूर मुझसे झगड़ रही थी कि मैंने आपको इसके गुम होने का क्यों बताया है। राबिया ने कहा, बहुत अफसोस की बात है नूर, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अब तुम मुझसे बातें छुपाओगी? तुम जानती भी हो कि मैंने किस तरह तुम दोनों बहन भाइयों की परवरिश की है, लेकिन मैंने तुम्हें कभी भी झूठ बोलना नहीं सिखाया। फिर तुमने मुझसे किस तरह ये बात छुपाई? तुम जानती हो कि अगर तुम गुम हो जाती तो तुम्हारे साथ क्या हो सकता था? तुम्हें कोई जंगली जानवर खा सकता था। तुम डर से और खौफ से कहीं बेहोश हो सकती थी। तुम्हें ज़रा भी अंदाज़ा है कि उस वक्त मुझ पर और बाकी घर वालों पर कैसा वक्त गुजरना था? तुम्हारी इस बचकाना हरकत ने मुझे बहुत डरा दिया है और आइंदा से मैं तुम्हें कभी भी घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं दूंगी। जिया कमरे के बाहर खड़ी सुन रही थी और फिर कमरे में आ गई और कहने लगी, क्या सच में नूर गुम हो गई थी? फिर तुमने इसे किस तरह तलाश किया? राबिया अपना सर पकड़कर बैठ गई, क्योंकि वो ये बात जिया से छुपाना चाहती थी, और थोड़ी देर बाद उठकर अपने कमरे में चली गई, क्योंकि जिया की बातें तो ख़त्म ही नहीं हो रही थी। रिदा भी जिया के सवालों से तंग आ गई थी और उसने कहा, नूर,
कुछ दिन के लिए मैं अपने चचा के घर रहने के लिए जा रही हूँ और मैं बस तुम्हें यही बताने के लिए आई थी, हमारी मुलाकात नहीं होगी। और वो अपने घर चली गई। गुलनूर ने अपनी मुमानी से कहा, मेरा सर बहुत दुख रहा है, इसलिए हम इस टॉपिक पर बाद में बात करेंगे। लेकिन गुलनूर की मुमानी एक नंबर की फसादी औरत थी। उसने फौरन से नूर के गुम होने की बात अपने बेटे ताबिश को बताई और ताबिश गुलनूर पर मजीद भड़कने लगा और कहने लगा, अच्छा होता ये वहीं रह जाती और हमारी जान छूट जाती। जिया ने कहा, पागल हो, ये तुम क्या बात कर रहे हो? कभी ऐसा सोचना भी नहीं कि गुलनूर से तुम्हारी जान छूट जाएगी। तुम जानते हो कि तुम्हारा उसका क्या रिश्ता है? ताबिश ने कहा, आप जानती हैं कि मुझे गुलनूर बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि ये बहुत ही आज़ाद ख्याल है और मैं उसे ज़रा भी पसंद नहीं करता। ताबिश अपनी अम्मी से कहने लगा, मुझे एक लड़की पसंद आ गई है और बहुत जल्द मैं उससे मोहब्बत का इजहार करने वाला हूँ। जिया ने कहा, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम जानते भी हो कि अगर घर में किसी को इस बात की खबर हुई तो क्या होगा? ताबिश ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी इस फजूल लड़की के पीछे बर्बाद नहीं कर सकता। इतनी बिगड़ी हुई लड़की से मेरा कोई वास्ता नहीं। मुझे उसकी शक्ल से नफरत है। न जाने आप लोगों ने मेरे लिए इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया। जिया ताबिश को समझाने लगी। रात हो रही थी, सब लोग अपने कमरों में थे। रात का खाना खाने के लिए गुलनूर की नानी ने सबको बुलाया, लेकिन राबिया नहीं आई। जब गुलनूर को मालूम हुआ कि राबिया आज खाना नहीं खाएंगी, तो वो राबिया को बुलाने के लिए गई। राबिया ने डांट कर गुलनूर को अपने कमरे से निकाल दिया और गुलनूर ने भी खाना खाने से इनकार कर दिया और अपने कमरे में चली गई। राबिया अपने कमरे में रो रही थी। इतने में खानज़ादा बेगम कमरे में दाखिल हुई और राबिया से उसके रोने की वजह पूछने लगी। राबिया ने अपना सर अपनी अम्मी की गोद में रखा और फिर उसने अपनी अम्मी को गुलनूर के गुम होने की बात बता दी और ये भी बताया कि जिया भी इस बारे में जान चुकी है। उसने ये सब बातें खुद अपने कानों से सुनी हैं। दूसरी तरफ गुलनूर भी बेचैन हो रही थी। गुलनूर अपनी अम्मी से बात करने के लिए अपनी अम्मी के कमरे की तरफ जा रही थी। जैसे ही गुलनूर ने अपनी अम्मी के कमरे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, दरवाज़ा अंदर से लॉक था। गुलनूर ने कमरे की खिड़की से झांकने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। बस अंदर से आने वाली आवाज़ें उसे साफ सुनाई दे रही थीं। राबिया और उसकी अम्मी आपस में बात कर रहे थे। राबिया अम्मी को कह रही थी कि गुलनूर के अब्बू की वफ़ात के बाद आप सब लोगों ने मुझे सहारा दिया, मुझे और मेरे बच्चों को अपने घर में रखा, मेरी हर ख्वाहिश का, हर ज़रूरत का ख्याल रखा और मैंने अपने बच्चों की परवरिश करने में कोई गलती नहीं की। मेरा बेटा अहमद बहुत अच्छा है, हमेशा मेरी बात मानता है, सुनता है। उसने कभी भी मुझे किसी भी शिकायत का मौका नहीं दिया। अम्मी, क्या आप जानती हैं कि गुलनूर ने मुझसे अपने गुम होने की बात छुपाई है? ये बात अलग है, और जब मुझे इस बात का रिदा से मालूम हुआ तो उसने रिदा से भी झगड़ना शुरू कर दिया था। मैं अपनी तरबियत पर बहुत शर्मिंदा हूँ। ताबिश और जिया भाभी बिल्कुल ठीक कहती हैं। मैं गुलनूर की तरबियत ठीक नहीं कर सकी। गुलनूर ने मुझे बहुत शर्मिंदा किया है और मुझे बहुत दुख दिया है, इसीलिए मैं कभी भी उससे बात नहीं करूँगी। अम्मी, आप जानती हैं कि अहमद का निकाह हो चुका है। अब मैं चाहती हूँ कि बच्चों की शादी करूँ और ख़ुद इस फ़र्ज से आज़ाद हो जाऊँ और उरूज को इसका मुकम्मल हक़ दे दूँ। अम्मी ने कहा, तुम ठीक कह रही हो राबिया, तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं सुबह ही तुम्हारे भाई से बात करती हूँ और उसे बच्चों की शादी के बारे में पूछती हूँ। गुलनूर कमरे की खिड़की से सब बातें सुन रही थी और उसे अपने किए पर बहुत अफसोस होने लगा और सोचने लगी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरी इस छोटी सी हरकत की वजह से मेरी अम्मी किस कदर शर्मिंदा हो रही हैं। राबिया ने अपनी अम्मी से कहा, मैं चाहती हूँ गुलनूर को भी इसके घर रुखसत कर दूँ, क्योंकि अब ये लड़की मुझसे नहीं संभाली जा रही। इसे इसका शौहर ही ठीक कर सकता है। मैंने बहुत लाड करके देख लिया, बहुत प्यार से समझा लिया है, लेकिन इस लड़की को कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ताबिश बिल्कुल ठीक कहता है,
ये सच में बहुत शोख, बद लिहाज और बदज़बान है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जिनकी जिम्मेदारी है अब वही इसको संभाल लें। गुलनूर की नानी ने अपनी बेटी राबिया को चुप करवाया और कहा कि सुबह तुम्हारे भाई से ज़रूर इस बारे में बात करूँगी, देखती हूँ कि वो क्या कहता है। गुलनूर ये सारी बातें सुनकर अपने कमरे में आ गई और इन तमाम बातों के बारे में सोचने लगी जो गुलनूर की माँ और उसकी नानी कर रही थी। गुलनूर अपने बिस्तर पर लेटी अपने भाई की शादी के बारे में सोचने लगी। वो ये सोच रही थी कि अब मेरे भाई की शादी है और मैं शादी में कौन कौन से रंग के कपड़े पहनूंगी और कितना मज़ा करूंगी। इतने में खानज़ादा बेगम ने दरवाज़ा खटखटाया और गुलनूर से पूछा, तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? गुलनूर ने कहा, मैं बस अम्मी की वजह से परेशान हो रही थी। खानज़ादा बेगम ने कहा, अब तुम्हें एहसास हो गया है कि तुमने अपनी माँ के साथ कितना गलत किया? नानी चलती हुई गुलनूर के बिस्तर पर बैठ गई और गुलनूर के बाल सहलाने लगी और उसे बातें करने लगी। देखो गुलनूर, तुम बहुत छोटी थी जब तुम्हारे अब्बू ने तुम्हारी अम्मी और तुम दोनों बहन भाइयों को छोड़ दिया था। तुम नहीं जानती कि तुम्हारे अब्बू तुम्हारी माँ से किस कदर झूठ बोला करते थे और इन दोनों की किस कदर लड़ाई हुआ करती थी। हर रोज़ तुम्हारा बाप नशा करके आता था और तुम्हारी माँ से झगड़ता था, कई बार मार कुटाई करता था। एक दिन तुम्हारे मामू राहील तुम्हारी माँ से मिलने के लिए गए तो तुम्हारे मामू ने देखा कि तुम्हारे अब्बू राबिया को मार रहे थे। तुम्हारे मामू राहील से ये सब कुछ देखा नहीं गया तो उन्होंने तुम्हारे अब्बू से झगड़ना शुरू कर दिया और तुम्हारी माँ उन दोनों को लड़ने से मना करती रही, लेकिन तुम्हारे अब्बू ने गुस्से में आकर तुम्हारी माँ को तलाक दे दी थी। अभी ये लफ्ज़ तुम्हारे लिए बहुत अजीब हैं, तुम इनका मतलब नहीं समझती हो, लेकिन फिर भी आसान लफ्ज़ों में मैं तुम्हें समझाती हूँ। तलाक का लफ्ज़ इस्तेमाल करने से मियाँ बीवी अलग हो जाते हैं और तुम्हारे बाप ने तुम्हारे मामू के साथ तुम तीनों को अपने घर से हमेशा के लिए निकाल दिया था। तुम्हारी माँ तुम्हारे अब्बू से अलग होने के बाद बहुत परेशान रहती थी और रोती रहती थी। उसने कई बार तुम्हारे अब्बू से सुलह करने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारे बाप ने कभी भी राबिया से बात नहीं की। इस तरह के मुश्किल वक्त में राबिया ने तुम दोनों की बहुत अच्छी परवरिश की और अच्छी तरबियत की, लेकिन कभी भी अपने बच्चों को ना ही झूठ बोलना सिखाया है और ना ही बातों को छुपाना सिखाया है। तुम मुझे बताओ बेटा कि तुमने ये सब कुछ क्यों नहीं बताया? तुम जानती हो जिस तरह राबिया मेरे लिए बहुत ख़ास है, मेरी जान बसती है राबिया में, इसी तरह तुम उसकी बेटी हो और तुम उसके लिए बहुत ख़ास हो। शायद वो अहमद से भी ज़्यादा तुमसे मोहब्बत करती है और वो तुम्हें कभी भी कोई तकलीफ़ और परेशानी नहीं होने देती। फिर तुमने अपने गुम होने का क्यों नहीं बताया? तुम जानती हो कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से राबिया पर क्या गुजरी है। उसे तुम्हारा बाप याद आ गया है, क्योंकि जिस चालाकी से तुमने बात को संभाला, इसी तरह तुम्हारा बाप भी झूठ सच बोलकर बात को संभाल लिया करता था और ख़ुद को सच्चा साबित करता था, और तुमने भी बिल्कुल वैसा ही किया। तुम जानती हो तुम्हारी अम्मी की तलाक के 4 साल बाद तुम्हारे अब्बू फौत हो गए थे और उनकी बहुत तवील ख़ानदानी जायदाद थी जो उसने अहमद से ज़्यादा तुम्हारे हिस्से में लिख दी थी। तुम्हारी परवरिश में तुम्हारी माँ ने राहील का 1 रुपया भी नहीं लिया और सब कुछ तुम्हारे बाप के पैसों से ही करती आई है। वो दुखी भी इसीलिए है क्योंकि जो हरकत तुमने की वो हरकत उसने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं की थी। तुमने सच में मेरी बेटी को बहुत दुख दिया है। गुलनूर ने बात को टोकते हुए बहुत ही बचकाना अंदाज से कहा, आप ठीक कह रही हैं नानी, मैं बहुत गलत हूँ, बल्कि मैंने बहुत गलत किया है। नानी कमरे से बाहर जाने लगी। गुलनूर ने नानी को आवाज़ लगाई और कहा, नानो बात सुने। नानो ने पलट कर देखा और कहा, बोलो क्या बात है गुलनूर? गुलनूर ने कहा, अहमद की और उरूज की शादी कब है? खानज़ादा बेगम नूर का चेहरा हैरत से देखने लगी। फिर गुलनूर ने बताया कि मैं आप दोनों की बातें सुन चुकी हूँ। उरूज की शादी मेरे भाई से होनी है। खानज़ादा बेगम ने कहा, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं सुबह तुम्हारे मामू से इस बारे में बात करूँगी। जैसे ही नाश्ते की मेज़ पर सब बच्चे इकट्ठे हो गए
तो खानज़ादा बेगम ने राहील से कहा, राहील और जिया दोनों ड्राइंग रूम में आकर मुझसे बात करो। खानज़ादा बेगम ये कहकर चली गईं। थोड़ी देर बाद जिया, राहील, खानज़ादा बेगम और राबिया चारों ड्राइंग रूम में बैठे थे। खानज़ादा बेगम ने राहील से कहा, मैं तुमसे ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। राहील ने कहा, जी अम्मी, बात करें, मैं सुन रहा हूँ। बेगम ने कहा, बच्चों की शादी के बारे में क्या सोचा है? राहील ने कहा, अभी बच्चे बहुत छोटे हैं, आप क्या चाहती हैं? बेगम साहिबा ने कहा, सब बच्चे शादी के काबिल हैं। वो अलग बात है, गुलनूर उम्र में छोटी है, लेकिन उसकी जिसामत, कदो कामत और उसका तेज दिमाग इस बात का सबूत है कि ये शादी के काबिल हो चुकी है। राहील ने कहा, आप बताएं कि आप क्या चाहती हैं? जिस तरह कहती हैं कर लेते हैं। जिया के चेहरे पर अजीब सी परेशानी थी। राबिया ने जैसे ही जिया के चेहरे की तरफ देखा, उसने जिया के चेहरे पर नुमाया नजर आने वाली परेशानी को पकड़ लिया और पूछा, भाभी आपके चेहरे पर कैसी परेशानी है? लेकिन जिया ने बात को पलट दिया और कहा, ऐसे ही बस बच्चों की वजह से परेशान हो गई हूँ, क्योंकि गुलनूर को आप सब लोग जानते हैं कि वो किस मिजाज की है, और ताबिश के मिजाज का भी आपको पता है। तो इन दोनों के मिजाज ही नहीं आपस में मिल रहे, हम शादी के बारे में कैसे सोच सकते हैं? खानज़ादा बेगम ने कहा, बस बात ख़त्म हो गई। मैं बेगम खानज़ादा बहुत जल्द बच्चों की शादी का ऐलान करने वाली हूँ। जिया ने कहा, अम्मी, अभी बच्चों को थोड़ा सा वक्त और दें, मुझे नहीं लगता कि बच्चे इस बात के लिए राज़ी हैं। बेगम ये कहकर अपने कमरे में चली गई और जिया गुस्से से अपने कमरे में चली गई। राहील उठकर जिया के पीछे उसके कमरे में गया। राहील समझ गया था कि ज़रूर जिया को कोई परेशानी तंग कर रही है। कमरे में जाने के बाद उसने जिया से पूछा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मुझे तुम्हारे चेहरे पर सच में परेशानी के तासुरात नजर आए हैं। मुझे बताओ, ऐसा क्या मसला है जो तुम इतनी परेशान हो? जिया ने राहील से कहा, ताबिश गुलनूर के साथ शादी करने पर राजी नहीं है, क्योंकि ताबिश को गुलनूर की सहेली मरियम पसंद आ गई है और वो आज उसे प्रपोज करने वाला है और आज अपने प्यार का इजहार करेगा। राहील ने कहा, यह कैसे मुमकिन है? तुम होश में हो कि तुम क्या कह रही हो? तुमने ताबिश को समझाया नहीं? जिया ने कहा, यह आप कैसे सोच सकते हैं कि मैंने ताबिश को समझाया नहीं होगा? मैंने उसे बहुत रोका और समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बहुत जिद्दी है, मेरी बात ही नहीं समझ रहा। राहील ने कहा, गुलनूर अपने निकाह वाली बात से अनजान है, लेकिन राहील तो समझदार था और उसको बखूबी पता है कि उसका निकाह गुलनूर से हो चुका है। जिया ने कहा, मैं खुद इस वजह से बहुत परेशान हूँ, जिसकी वजह से मेरा ध्यान वहाँ नहीं था बल्कि ताबिश की तरफ था। शाम होने को थी और ताबिश गुस्से से बाहर आया। गुलनूर अपने बागीचे के गमले ठीक कर रही थी और गलती से गुलनूर ताबिश के साथ टकरा गई, जिसकी वजह से ताबिश बहुत गर्म हो गया और गुस्से से चीखता चिल्लाता हुआ गुलनूर को कमरे में ले गया। गुलनूर शोर करने लगी, ताबिश भाई मेरा हाथ छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है। ताबिश ने कहा, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, मेरा तुम पर मुकम्मल हक है। लेकिन गुलनूर चीखती चिल्लाती रही। ताबिश ने गुस्से से उसे बेड पर धकेला। गुलनूर ने कहा, मुझे माफ़ कर दें ताबिश भाई, मैं अब कभी भी घर से बाहर कदम नहीं रखूंगी, मुझे माफ़ कर दें। ताबिश उस वक्त बहुत गुस्से में था। गुलनूर समझ नहीं पा रही थी कि ये इतना गुस्से से लाल क्यों हो रहा है। ताबिश ने गुलनूर से कहा, ज़्यादा शोर शराबा करने की ज़रूरत नहीं, मेरा तुम पर मुकम्मल हक है क्योंकि तुम मेरी बीवी हो। ये सुनकर गुलनूर के होश उड़ गए, उस पर एक सख्ता तारी हो गया। गुलनूर समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो ताबिश को समझ नहीं पा रही थी क्योंकि उसने ताबिश का ये रवैया पहली बार देखा था। तभी रशीदा नौकरानी खानज़ादा बेगम को जाकर बताने लगी कि ताबिश भाई इस तरह गुलनूर को खींचकर कमरे में ले गए हैं। खानज़ादा बेगम, जिया और राहील, राबिया सब ताबिश के कमरे की तरफ बढ़ रहे थे। इतने में गुलनूर दरवाजे से बाहर आ गई और अपनी माँ के गले से लिपटकर रोने लगी
और अपनी माँ से पूछने लगी, क्या सच में ताबिश ने जो कहा वो सच है? राबिया ने कहा, मुझे बताओ क्या कहा है ताबिश ने? गुलनूर राबिया से कहने लगी, मुझे ताबिश ने कहा है कि मेरा ताबिश से निकाह हो चुका है। गुलनूर ने अपनी नानों से कहा, आप बताएं क्या सच है? आपने तो कहा था कि उरूज और अहमद का निकाह है, आपने मेरी शादी का जिक्र नहीं किया था। फिर ताबिश ने इतनी बड़ी बात कैसे बोल दी कि मेरा उससे निकाह हो चुका है और मैं उसकी बीवी हूं? खानजादा बेगम ने कहा, शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है लड़की, मेरा पोता ताबिश बिल्कुल ठीक कह रहा है। 8 साल की उम्र में ही तुम्हारा ताबिश से निकाह हो चुका था। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम अपनी माँ से अपने निकाह के कागजात लेकर देख सकती हो। गुलनूर रोने लगी और राबिया उसे अपने कमरे में ले गई। खानजादा बेगम अपने कमरे में चली गईं और उन्होंने राहील और जिया से कहा कि ताबिश को मेरे कमरे में लेकर आओ। बेगम ने राबिया को भी अपने कमरे में बुला लिया और उन सब ने ताबिश से सवाल किया कि तुमने गुलनूर के साथ ऐसा क्यों किया? ताबिश ने कहा, यह बात सच है जो कुछ भी आपको गुलनूर ने बताया है, और ये भी सच है कि ताबिश गुलनूर को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, बल्कि ताबिश तो गुलनूर की एक सहेली मरियम को पसंद करने लगा था। और आज जब ताबिश ने उससे इजहार किया तो उसने ताबिश के मुंह पर यह कहकर तमाचा मार दिया कि वो पहले से शादीशुदा है। और मरियम ने कहा, ताबिश तुम्हें गुलनूर पर तवज्जो देनी चाहिए। तभी ताबिश घर के अंदर दाखिल हुआ तो गुलनूर बागीचे में पौधे ठीक कर रही थी और उसके उड़ते हुए बाल और गुलाबी चेहरा ताबिश को उसकी तरफ खींच रहा था। ताबिश दूर खड़ा उसे देखता जा रहा था और ताबिश को उस पर प्यार आ रहा था। जैसे ही ताबिश ने उसकी तरफ कदम बढ़ाने शुरू किए और उसके करीब जाकर रुक गया, अचानक से गुलनूर उठी और ताबिश से टकरा गई और ताबिश को नूर पर प्यार आने लगा। लेकिन गुलनूर की बदज़बानी की वजह से ताबिश बहुत चिढ़ गया था और ताबिश को गुलनूर पर बहुत गुस्सा आया और उसी गुस्से में गलती से ताबिश ने वो कर दिया जो उसे नहीं करना चाहिए। ताबिश जानता था कि उसने बहुत गलत किया है और ताबिश सबके सामने अपनी गलती को तस्लीम करने लगा। ताबिश कहने लगा, आप जो सज़ा दें मुझे कबूल होगी। बेगम ने कहा, तो फिर अब तुम्हें बहुत जल्द गुलनूर को रुखसत करके अपने कमरे में लाना पड़ेगा। ताबिश ने कहा, ठीक है, मैं राज़ी हूँ। खानजादा बेगम ने कहा, बोलो राहील और जिया, क्या सलाह है? राहील ने कहा, ठीक है अम्मी, अगर ताबिश राज़ी है तो मैं भी राज़ी हूँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं। राबिया गुलनूर के पास कमरे में गई। गुलनूर अपने बिस्तर पर रो रही थी। राबिया ने उसे चुप करवाया। इतने में खानजादा बेगम भी कमरे में आ गई और उन्होंने गुलनूर को रुखसती के लिए राज़ी किया। उन्होंने समझाया कि वो तुम्हारा शौहर है, हम जानते हैं ताबिश ने जो भी किया बहुत गलत किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मियाँ बीवी का ही एक ऐसा रिश्ता है जो दोनों को एक दूसरे के करीब लाता है। मैं जानती हूँ कि तुम निकाह का मतलब नहीं जानती, अब तुम्हें अपनी बाकी की ज़िंदगी ताबिश के साथ गुजारना पड़ेगी। जब लड़की पैदा होती है, माँ बाप उसे पाल पोस कर बड़ा करते हैं ताकि बेटी के जवान होने के बाद उसे शादी करके रुखसत होकर दूसरे घर में भेज दिया जाए, जहाँ वो अनजान लोगों में अपनी बाकी ज़िंदगी बसर करती है। लेकिन तुम्हारे बड़े होने के साथ साथ तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी को लेकर बहुत परेशान रहती थी और वो नहीं चाहती थी कि तुम किसी दूसरे घर में शादी करके जाओ। न जाने दूसरा घर कैसा होगा, क्या वो तुम्हारे नखरे उठा सकता होगा या नहीं, कोई तुम्हें इतना प्यार दे सकता होगा जितना तुम्हारी माँ और हम सब तुमसे करते हैं या नहीं। राबिया ने खुद ही फैसला किया था कि वो ताबिश से तुम्हारा निकाह करवा देगी। बचपन से अब तक हमने तुमसे ये बात छुपाई क्योंकि हम चाहते थे जब सही वक्त आएगा तुम्हें बता देंगे, लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि ये वक्त इस तरह आएगा और हमने तुम्हें इसी तरह बताना पड़ेगा। तुम ताबिश के निकाह में हो, इसीलिए ताबिश तुम पर रौब जमाता था क्योंकि वो तुम्हारी फिक्र करता था, और अब तुम्हें अपनी बाकी मांदा ज़िंदगी उसी के साथ गुजारनी पड़ेगी। हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं
और हम सब तुम्हें खुद से दूर नहीं कर सकते। इसी लिए हमने बचपन में ही ये फैसला किया था कि हम तुम्हें हमेशा के लिए अपनी नज़रों के सामने रखेंगे। इसीलिए हमने ताबिश के साथ तुम्हारा निकाह कर दिया था, क्योंकि तुम राबिया का वो कीमती असासा हो जिसके बगैर वो नहीं रह सकती। इसीलिए ये फैसला राबिया का था कि तुम्हारा निकाह ताबिश के साथ कर दिया जाए। अगले दिन नूर की रुखसती हो गई और वो ताबिश की बीवी बन गई। दोनों ने एक दूसरे को दिल से कबूल कर लिया और एक अच्छी और खुशगवार जिंदगी गुजारने लगे। गुलनूर की शादी होते ही राबिया ने भी इस हवेली से अलग घर ले लिया और अहमद और उरूज की शादी करके अलग घर में रहने लगी थी। राबिया ने सोच लिया कि अगर मैं हर वक्त नूर के सामने रहूंगी तो वो बहुत गलतियां करेगी, जिस वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा। इसीलिए राबिया ने अलग रहने का फैसला कर लिया था। जैसे ही गुलनूर की रुखसती ताबिश के साथ हुई, तभी अहमद और उरूज की शादी हो गई। अब सब लोग अपने घर में बहुत खुश हैं, जिंदगियों में आगे बढ़ चुके थे। अक्सर राबिया लोग हवेली में आकर रुकते थे और खूब मज़ा करते थे। ऐसे सब एक दूसरे के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।